امریکی صدر کا ایران کی ناکابندی ختم کرنے کا اعلان. جو جہاز ناکابندی کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے وہ نکل سکتے ہیں اور ایران کو فوری طور پر آبنائے ہرمز کو کھولنا ہوگا. جہازوں سے کسی قسم کا ٹول ٹیکس نہیں لیا جانا چاہیے. ایران کو متفق ہونا ہوگا کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا. جہازوں کا عملہ ان کی جانب سے اپنے گھر والوں کو ہیلو کہے. امریکی زمین میں دفن نیوکلیئر ڈسٹ کو ایران کے ساتھ مل کر نکالے گا اور اگلے نوٹس تک کسی قسم کی رقم کا کوئی تبادلہ نہیں ہوگا. دیگر کم اہمیت والے معاملات پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام. امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر دستخط کی امیدیں روشن ہو گئی ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ممالک کو بھیج دیا ہے اور برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق معاہدے میں آبنائے ہرمز اور امریکی ناکابندی کھولنے کی شقیں شامل ہیں. برطانوی اخبار دی گارڈین نے کہا کہ چین یہ چاہتا ہے کہ معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرے. that we're able to get to a final agreement here. And we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So امریکہ کے نائب صدر نے ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب پہنچنے کی تصدیق کر دی. ایران معاہدے کا خواہش مند اور سنجیدگی سے مذاکرات کر رہا ہے. کئی معاملات پر کافی پیش رفت بھی ہو چکی ہے. کب دستخط ہوں گے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. جے ڈی وینس کی میڈیا سے گفتگو. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے کہا کہ اپنے مطالبات بات چیت سے نہیں میزائل سے منوائے. مذاکرات نے اپنا نقطہ صرف سمجھایا ہے. واضح کر دیا کہ ضمانتوں اور الفاظ پر بھروسہ نہیں جب تک سامنے والا عملی اقدام نہیں کرتا. ایران بھی نہیں کرے گا. دکترین ترامپ و نتانیاهو یک دکترین مشترکی بوده و اون اینه که ما اگر بخوایم نظم جدیدی به منطقه بدهیم حتما باید ایران ساقط بشه. امریکہ نے تازہ بات چیت میں ایران کے بیشتر تجاویز تسلیم کر لی ہیں. ایران کے قومی سلامتی کمیشن کے رکن فدا حسین مالکی کی گفتگو. کہا مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی لیکن اصل تشویش ٹرمپ کی غیر مستقل مزاجی اور وعدہ خلافی پر ہے. امریکہ اور اسرائیل ایران کو جھکا کر مشرق وسطی کے نئے نقشے پر نئی لکیریں کھینچنا چاہتا ہے. پاسداران انقلاب کے کمانڈر محسن رضائی کا چینی ٹی وی کو انٹرویو. امریکہ کے نائب صدر ایرانی صدر مسعود پزشکیان امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ ختم کروانے کی کاوشوں پر پاکستان اور ملائیشیا کے شکر گزار. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے بیان میں انہوں نے ملائیشیا کا ہمدردی پر مبنی موقف اور پاکستان کی جانب سے معاہدے تک پہنچنے کے لیے مؤثر کاوشوں اور اقدامات کو سراہا. مسعود پزشکیان نے کہا کہ ملائیشیا اور پاکستان کے وزرائے اعظم سے گفتگو کے دوران انہوں نے ایران کی سفارتکاری سے وابستگی پر زور دیا. انہوں نے مزید کہا کہ مسلم اور ہمسائے ممالک کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون کو فروغ دینا ایران کی پالیسی ہے. ایرانی میڈیا کا بوشہر کے قریب امریکی طیارہ اور MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ. برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران کے آبنائے ہرمز میں امریکی بحری جہازوں پر بیلسٹک میزائلز فائر کیے گئے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے بوشہر میں امریکی جنگی طیارے کی تباہی کا دعویٰ مسترد کر دیا. امریکہ کے تمام حساس جات محفوظ ہیں. سینٹ کام کا سوشل میڈیا پر پیغام. واشنگٹن میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ملاقات. خطے کی موجودہ صورتحال اور پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال. دونوں ممالک کے درمیان ترجیحی شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت. سفارتکاری کے ذریعے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں پر بات چیت کی گئی. امریکہ ایران معاہدے کے امکانات روشن ہوتے ہی تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری. برینٹ کروڈ 2 ماہ کی کم ترین سطح $92 تک آ گیا. امریکی خام تیل کی قیمت $87 فی بیرل ہو گئی. بڑی عید کے تیسرے روز حکومت کا عوام کو بڑا تحفہ. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے کی کمی کا اعلان. قوم سے وعدہ کیا تھا جیسے ہی گنجائش پیدا ہوگی ریلیف فراہم کیا جائے گا. وزیر اعظم نے قوم سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا. جب خطے کے دوسرے ممالک نے پیٹرول حاصل کرنے کے لیے قطاریں لگائی تھیں پاکستان میں وزیر اعظم کے بروقت اقدامات کی بدولت عوام کو پیٹرول اور ڈیزل دستیاب تھا. عالمی منڈی میں قیمتوں کے بدترین بحران کے دوران 130 روپے سے زائد کی سبسڈی دے کر تیل کی قیمتوں میں اضافہ روکا گیا.
सब्सिडी की मद में आवाम को रिलीफ फराहम किया गया। वजीर आजम ऑफिस का एलामिया। ₹22 की कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹381.78 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹380.78 फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। ईरान ने ट्रंप की ओमान को धमकियां ब्लैक मेलिंग करार दे दी। ओमान के खिलाफ दिए गए धमकी आमेज बयानात की सख्त मजम्मत करते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का बयान, कहा अमरीका का रवैया एक आज़ाद और अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क को दबाव में लाने की कोशिश है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल बक़ाई ने बावर कराया है कि अमरीका लेबनान, फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता में इसराइल के जराइम में शरीक है। ईरानी शहर अरोमिया में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की जानिब से अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। ईरानी परचमधार ने मुजाहिरीन की सियासी और फौजी क़यादत से इजहार यकजहती। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को तलब कर लिया। सदर ने सेनेट के इजलास में 5 जून को इजलास बुलाया है। वज़ीर ख़जाना ने आइंदा वफाकी बजट में अवाम पर टैक्सेस का कम अज़ कम बोझ डालने की खुशखबरी सुनाई है। 10 दुरुस्त वीज़ा, टिकट्स और सफरी दस्तावेजात रखने वाले शहरी को ऑफलोड करना गैर कानूनी करार दे दिया गया। किसी भी मुसाफिर को ऑफलोडिंग करते वक्त अफसरान को तफसीली और ठोस वजूहात तहरीर करना होंगी। मुसाफिर से पूछे गए सवालात और उनके जवाबात रिकॉर्ड किए जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने FIU को बैरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों को ऑफलोड करने के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में घर में गैस सिलेंडर का धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में जाती रंजिश पर झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। वजीराबाद में पिकनिक मनाने आने वाली 4 खवातीन दरियाए चनाब में डूब कर जाँ बहक हो गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 को रेस्क्यू किया। हरीपुर के हितार इकोनॉमिक जोन के करीब तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई। 6 खवातीन समेत 7 अफराद शदीद जख्मी। हादसे का शिकार खानदान मुल्तान से बोनेर जा रहा था। कराची बंदरगाह के बाहर खुले समंदर में 2 जहाज टकरा गए। हादसा गुज़श्ता शब पेश आया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईद का तीसरा दिन बच्चे कुचे रह जाने वाले जानवरों की कुर्बानी हो गई और तीसरी ईद यादगार बनाने के लिए कई अफराद के तफरी गाहों में डेरे। आज एक तरफ साफ सुथरा माहौल, ऐसे लगता है कि जैसे ईद कुर्बान थी ही नहीं। वो ना कोई अलाइश नज़र आई, ना कहीं से बदबू आई, ना कोई ताफुन उठा। लेकिन बदकिस्मती से बाकी जगहों पे, बाकी सूबों में शायद ये चीज़ें इस तरह लोगों को नहीं मुहैया की गई। पंजाब के वज़ीर बल्दियात ने ईद कुर्बान पर सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतरीन करार दे दिए। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने अपनी खुशियां कुर्बान करके ईद पर आवाम को खुशियां दी। ज़ीशान रफीक ने सुथरा पंजाब के वर्कर्स को हीरो करार दिया और हर वर्कर के लिए 10,000 रुपए इनाम का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब का एक और अवाम दोस्त इक़दाम। पंजाब भर में ईद उल अज़हा के दौरान तफरीही मकामात पर फूड इंस्पेक्टर्स के फूड पॉइंट्स पर छापे। किसी को जुर्माना, किसी को इस्लाही नोटिस थमा दिया। मुज़र सेहत अशिया तलब करती गईं। दुनिया के बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार महाज सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात पाक फौज के बहादुर जवान हरदम तैयार और मुस्तैद। सख्त सर्दी और ठंडी हवाओं में जवान वतन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। कौम ईद की खुशियां मना रही है। हम सियाचिन की बर्फपोश चोटियों पर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त चौकस और चौकन्ना है। ईद उल अज़हा पर पाक फौज के बहादुर जवानों का कौम के नाम अहम पैगाम।
UN आर्म फोर्स का आलमी दिन पर पाकिस्तान का आर्म फोर्स से ताल्लुक दिहाइयों पर मुहित और अमन से वाबस्तगी का सबूत। 1960 से अब तक 2,37,000 पाकिस्तानी एहलकार आर्म फौज के साथ खिदमत अंजाम दे चुके हैं। 183 बहादुर पाकिस्तानियों ने आर्म नेशन के लिए जान का नजराना पेश किया। रमज़ान अक़वाम मुत्तहिदा आर्म नेशन के आलमी दिन का थीम आमन सरमायाकारी है। ISPR का अक़वाम मुत्तहिदा आर्म नेशन के आलमी दिन पर अहम पैगाम आलमी आर्म के लिए ब्लू हेलमेट्स की खिदमत और कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश। सदर आसिफ अली जरदारी का दुनिया भर में मुश्किल और ख़तरनाक हालात में खिदमत अंजाम देने वाले आम दस्तों को खिराज तहसीन आलमी आम के लिए जान का नजराना पेश करने वाले 183 पाकिस्तानी एहलकारों की जुर्रत और आज़म को सलाम। पाकिस्तान UN आम दस्तों के लिए सबसे दरीना और बड़े शराकतदार ममालिक शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के आम दस्तों के लिए पाकिस्तान 5वां बड़ा शराकतदार है। पाकिस्तान को अपने शहदा और उनके बहादुर सपूतों पर फख्र है। पाकिस्तान UN आम मिशन के तवस्सुत से आलमी अमन को मज़ीद मुअस्सर करने में अपना भरपूर ताउन जारी रखने के आज़म का अदा करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के आम दस्तों के आलमी दिन पर अहम पैगाम। शफ़ैया सानहे को 17 बरस बीत गए। आसिया और नीलोफर के बुरसा आज भी इंसाफ के मुंतज़र हैं। 29 मई 2009 को भारतीय एहलकारों के हाथों कश्मीरी ख़वातीन आसिया और नीलोफर की इस्मत दरी और कत्ल हुआ। कश्मीरी रहनुमा ने सानहे पर भारतीय इदारों पर अदम एतमाद का इज़हार करते हुए आज़ादाना बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को जिनसी तशद्दुद बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर ब्लैक लिस्ट कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रेप और जिनसी नौइयत के तशद्दुद में मुलव्वस होने के ठोस सबूतों पर कार्रवाई की गई। सेहूनी रियासत की ढटाई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। एंटोनियो गुटेरेस को जवाबन ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। सेहूनी रियासत ने गजा पर मुकम्मल कब्जे और शहरियों से खाली कराने का घिनौना मंसूबा बना लिया। नेतन्याहू का 77% इलाके पर कंट्रोल का हुक्म। 7% गजा पहले ही सेहूनी फौज के कब्जे में है। अमरीकी वज़ीर जंग की सिंगापुर में तैनात अमरीकी फौजियों के साथ ट्रेनिंग। पीट हेग्सेथ ने फिटनेस का मुजाहरा करते हुए पुशअप्स भी लगाए। ईरान ट्रंप के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठे। जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो या फिर अमरीकी फौज का डट कर मुकाबला करे, पीट हेग्सेथ की धमकी। मशरक़ी रोमानिया में अपार्टमेंट पर रूस का ड्रोन हमला। आग भड़क उठी, 2 अफराद ज़ख्मी। ड्रोन यूक्रेन की जानिब दागा गया था जो मशरक़ी हिस्से में 10 मंजिला इमारत पर आन लगा। रोमानिया की वज़ारत दिफ़ा का बयान। हमले से कशीदगी में इजाफा। नेटो की रोमानिया पर हमलों की मज़म्मत। नेटो रुकन ममालिक के हर इंच का दिफा करेगी। रूस ने ड्रोन हमला करके एक और रेड लाइन अबूर की। यूरोपीय यूनियन का रद्द अमल। जेफ बेजोस की खलाई कंपनी ब्लू ऑरिजिन का रॉकेट दौरान टेस्ट लॉन्चिंग पैड पर ही फट गया। वाक़या अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर केप कैनावेरल में पेश आया। तमाम अमला महफूज रहा। सोने की कीमत में 500 रुपए फी तोला कमी। 1 तोले की कीमत 4,74,862 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 429 रुपए की कमी के बाद 4,70,170 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में $5 की कमी से फी औंस सोना $4,525 की सतह पर आ गया। मुल्क भर में मौसम शदीद गर्म और खुश्क। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। इस्लामाबाद में पारा 40 डिग्री को छू गया। कराची में 37 डिग्री की गर्मी, 42 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोजा मैच कल रावलपिंडी में होगा। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम 1000वें वनडे इंटरनेशनल मैच को फतह से यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म है। 999 मैचेस में पाकिस्तान ने 520 मैचेस जीते, 440 मैचेस हारे, 9 मैचेस टाई हुए और 22 गैर नतीजा रहे। शाहीन अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म है। खिलाड़ियों ने सीरीज के लिए अच्छी ट्रेनिंग की। कौमी टीम के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीदें लगा ली। बड़ी ईद पर सिनेमा हाउसेस में बड़ी रौनक। पेशावर में नई फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म बीन सिनेमा हाउसेस पहुंच गए।